है पंजाब करां की सिफ्त तेरी, है पंजाब करां की सिफ्त तेरी। पंजाब करां की सिफ्त तेरी, शाना दे सब सामान तेरे। जल पौन तेरा हरियाल तेरी, दरिया पर्वत मैदान तेरे। ओ तेरी मां क्यों मिठी बोली दी जी कर दिया सिफ्त न रजदा है। उर्दू हिंदी दिया साजा विच सुर ताल तेरा ही वजदा है। बसे रसे कर बार तेरा, जीवे जागे परवार तेरा। मस्जिद मंदिर दरबार तेरा, मियाँ लाला सरदार तेरा। दुनिया सारी भी सोनी है ओ, दुनिया सारी भी सोनी है, पर तेरा रंग न्यारा है। तेरी मिट्टी दा खुला भी शाही महला तो प्यारा है। तेरे जर्रे जर्रे दे अंदर अपनत जई कोई बसदी है। तेरी गोदी दे विच बैंदियां ही दुनिया दी चिंता नसदी है। तेरी गोदी दे विच बैंदियां ही दुनिया दी चिंता नसदी है। ऐ पंजाब करां की सिफ्त तेरी, ऐ पंजाब करां की सिफ्त तेरी। ऐ पंजाब ऐ पंजाब, ऐ पंजाब। ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾਕਟਰ ID ਗੌਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਥਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਤਰ ਗੁਲੇਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਲੇਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਥਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕਾਲਜ ਫਗਵਾੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ HS ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 9 ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਾਤਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਦਲੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਫਾਸਤ ਦੀ ਪੁੰਜ। ਇੱਕ ਨਫੀਸ ਹਸਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਮਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਓਫੈਂਸਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਲੀ ਅਬਿਊਸਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਕੋਚਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਬਿਊਸਿਵਨੈਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਫੈਂਸਿਵਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਫਾਸਤ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਫਾਸਤ ਦੀ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫਾਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਸਪੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਨਿਕਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਲਗਾਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਆਲੋਚਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ HS ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਾਈਵਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਈਵਾ ਲੈਣ ਆਏ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਔਰ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ HS ਬੇਦੀ ਉਸ ਬੰਬੂ ਕਾਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਾ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਧਰ ਗੁਲੇਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਾਈਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ YouTube ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਕਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान की कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुलते हुए इक्के वाले कभी घोड़ी की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चीख कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं,
और संसार भर की गलानी, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगलों से राह घेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीप चलती नहीं, पर मीठी चूड़ी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बूकाट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूखने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो सेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। दृश्य 2। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है?
दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मई और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। नामालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह, और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेल के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देवी पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजार सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बागियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भर कर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो झलमनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहीं बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फरंगी मेन? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया।
अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिर की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਏ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੋਗਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੱਡੀਏ। ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਦੇੜਾ ਸੌਦਾ ਅੜੀਏ। ਓਏ ਲਾਣਾ ਚਟਾਕਾ ਕੱਦੂਏ ਨੂੰ, ਲਾਣਾ ਚਟਾਕਾ ਕੱਦੂਏ ਨੂੰ, ਕਬਣਾਇਆ ਵੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੋਰੀਏ, ਹੁਣ ਲਾਣਾ ਚਟਾਕਾ ਕੱਦੂਏ ਨੂੰ। कौन जानता था कि दाढ़िया वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दृश्य 3। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरानकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो, कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छुट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैंने, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं झूठ? यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेन की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुकुम हुजूर। कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले
उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है, 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिला में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग, 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दियासलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन, वजीर सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या क़यामत आ गई? जरा तो आंख लंकने दी होती। दृश्य 4। होश में आओ, क़यामत आई और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो मर गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक ना खड़के। देर मत करो।
हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हो। 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय आती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लप्टन साहब तो बिन डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए कि एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की गाड़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकल कर कहा था कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी।
घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना का दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी वान भट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटे से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तो ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो। सूबेदारनी होरा को चिट्ठी
भी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रही है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 70 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज नाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और सूबेदार उसे बहुत चाहता है। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। घावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है।
लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीनों की एक घंघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे एक ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा धनी वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। सब जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹ ਵੀਰਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਛਪਵਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਮਝਣੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਥਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਭਮਰਾ, ਸੁਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾੜਲੇ ਤੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਘੁੰਮਣ, ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ,
ਦੁਆਬਾ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰੀ, ਅਸ਼ਮਾ ਸਾਨੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਨਾਜ਼, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਸੁਖਚੈਨਾਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ USA, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ USA ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਥਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਉਮਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤਾ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਰਜ਼ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਚੰਦਰਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਲੇਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਚਰਚਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲੋਚਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ HS ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਲੇਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬੰਬੂ ਘਾਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਿਕਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी प्रोफेसर अवतार सिंह का और प्रोफेसर हरपाल सिंह, जिनके साथ मैंने ये कहानी काफ़ी बार पढ़ी और हरपाल सिंह ने काफ़ी प्रैक्टिस कराई मेरे को ये कहानी उनके साथ में। हम रोज़ ऐसे एक एक दो दो घंटे लगा कर इकट्ठे पढ़ा करते थे फ़ोन पे। और
अब आज मैंने ये कहानी काफ़ी 2 महीने के बाद खुद पढ़ी, काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि कब से हम ये प्लान कर रहे थे कि ये सेशन करेंगे, बट कुछ ना कुछ हो पोस्टपोन हुए जा रहा था। तो आज जब मैंने दोबारा ये पढ़ी तो वही भाव जो फर्स्ट टाइम मेरे को पढ़कर आए थे दोबारा आए, तो बहुत ही ज़्यादा टचिंग और काफ़ी इमोशनल स्टोरी लगती है। और जो पूरी इमेजरी फॉर्म हुई है अमृतसर को लेकर, उस इट जस्ट हमें ट्रांसपोर्ट कर देती है उस टाइम में। जो सब जैसे डिस्क्राइब किया हुआ है बम्बू काट वाले, इनफैक्ट जो पूरा उन्होंने खंदक का भी इमेजरी दिखाई है, और आखिरी में जो फ्लैशबैक में हमें लेके जाते हैं, तो काफ़ी टचिंग स्टोरी लगती है। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਥਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ID ਗੌਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੋਹਜ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ LPU ਅਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਰਜਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਮਲੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। पंजाब